حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوستو، اس سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر ایک حصہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اسے ضرور جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل واقعے کا علم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹیڈی دل، چچڑی، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، بے شک وہ لوگ گناہگار تھے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سب سے پہلے عذاب ان پر قحط اور خشک سالی کی صورت میں نازل ہوا۔ دریائے نیل میں پانی بہت کم ہو گیا، اس طرح فصلیں سوکھ گئی، جانور اور مویشی ہلاک ہونے لگے، لوگوں کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھولوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حق تو یہ تھا کہ وہ ان عذابوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ سمجھے، الٹا کہنے لگے، ہم پر جو یہ آفت اتری ہے یہ موسیٰ اور اس کے قوم کی نجوست کے سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیج دیا، ایسی سخت اور تیز بارشیں ہوئی کہ انہوں نے کھیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پانی کی سطح اس حد تک بلند ہوئی کہ زرعی زمین سیلاب کی نظر ہو گئی، پھر پانی زمین پر ٹھہر گیا جس کی وجہ سے ایک مدت تک زمین کاشت کے قابل ہی نہ ہو سکی۔ اس طرح بھوک اور پیاس میں اضافہ ہو گیا۔ فرعون سمجھتا تھا وہ ان طوفانوں اور مصیبتوں کے آگے لاچار ہے، وہ ان کو روکنے یا دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، ان سے درخواست کی، تو اپنے رب سے اس بات کی دعا کر جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے گا تو ہم ضرور ضرور تیرے کہنے سے ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پر وہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور طوفان کو روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے اور ایمان لے آتے، لیکن ہوا کیا، فرعون اور اس کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہ کیا، بلکہ خیانت کی اور وعدہ توڑ دیا۔ طوفان دور ہونے اور کھیتوں کے ہرا بھرا ہو جانے پر وہ لوگ کہنے لگے، در حقیقت یہ عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، اس کے نتیجے میں تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کے لشکر بھیج دیے۔ ٹڈی دل درختوں کے پتے کو چٹ کر گئی، پھولوں کو تہس نہس کر کر رکھ دیا، غرض ہر قسم کی زمینی نباتات ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان تک نہ بچا، اور ایسا ایک مدت تک رہا۔ پھر یہ معاملہ بھی ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ اس عذاب کو ان سے ہٹا دے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ فرعون اور اس کی قوم پھر اپنے وعدے سے مکر گئی، نہ ایمان لائی، نہ بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہوئے، بلکہ انہیں سزائیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ جوئیں ان کے بستروں میں، ان کے کپڑوں میں، غرض ہر چیز میں نظر آئیں۔ وہ اس قدر بدحال ہو گئے کہ سو بھی نہ سکتے تھے۔ جب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، وہ بالکل بے بس ہو گئے، تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے دعا کے لیے کہا اور وعدہ کیا اگر یہ عذاب ٹل جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ یعنی وہی بات کہی جو پہلے کہتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھی ہٹا دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اس بار بھی وعدہ پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کر دیا، ان کی ہر چیز میں مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے منہ کی طرف لے جاتے تو اس میں بھی مینڈک نکل آتے، کوئی اپنے کپڑے اتارتا تو ان میں بھی مینڈک ہوتے، کھانے کے برتنوں میں بھی مینڈک۔ اب تو ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو انہیں اس عذاب سے نجات دلاتا۔ چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تو نے ہم سے عذاب ہٹا دیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ان کے لیے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مصیبت بھی دور کر دی، مینڈک غائب ہو گئے۔ اس بار بھی فرعون اور اس کی قوم نے وعدہ پورا نہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا، اور یہ عذاب تھا خون کا عذاب۔ جہاں جہاں پانی تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ دریا سے پانی پینے کا ارادہ کرتے یا کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون ہوتا، کسی برتن میں رکھے پانی کو پینے کے لیے اٹھاتے تو وہ خون بن جاتا۔
पहले की तरह वो इस मर्तबा भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तू अपने रब से दुआ कर, हमसे ये खून का अजाब टल जाए, हम वादा करते हैं हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनसे ये बला भी हटा दी, लेकिन इस मर्तबा भी वो अपने वादे से फिर गए। उस वक्त तक जितनी भी आफात नाजल हुई थी, उनमें अजीब बात ये थी कि वो सिर्फ फिरौन के लोगों पर नाजल हुई थी। बनी इसराइल उनसे बिल्कुल महफूज रहे थे। इस तरह इन वाज़िह तरीन निशानियों में उनके लिए बड़े सबक थे। अगर उनमें अकल होती तो वो जरूर सबक हासिल करते, लेकिन उनकी ईमान लाने की नीयत ही नहीं थी। वो तो हर बार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से झूठ मूठ वादा करते थे। अल्लाह ताला भी उन्हें मोहलत पर मोहलत देता रहा। खून वाला अजाब दूर होने पर वो अपने जुल्म में और बढ़ गए। वो फिरौन की गुमराही की पैरवी करते रहे, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर तुले रहे, अगरचे आप अपने रब की तरफ वाज़िह निशानियां लेकर आए थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी उनकी तरफ से मायूस हो गए। बनी इसराइल पर होने वाले मजालम ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। चुनाचा आपने उनके लिए दुआ की, ऐ हमारे रब, उनका मालो जर गारात कर दे, उनके दिल सख्त कर दे, ये उस वक्त तक ईमान ना लाए जब तक के दर्दनाक अजाब ना देख लिया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। आपको हुक्म दिया, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल चल, बिलाशुबा तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से बाखबर किया। उन्होंने फौरन तैयारी कर ली। यूं ही रात की तारीखी छा गई। आप उन्हें लेकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। रात की तारीखी में सफर करना आसान काम नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने रोशनी का एक सतून उतार दिया। ये भी कहा जाता है आप अलैहिस्सलाम के आसे से रोशनी निकलने लग गई। अभी रास्ते में ही थे कि भटक गए, रास्ता भूल गए। भूल किया गए, अल्लाह ताला ने बुला दिया। और बात दरअसल ये थी कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया था, एक जमाना आएगा जब तुम्हें मिस्र छोड़ना पड़ेगा। जब वो वक्त आए तो मेरी लाश अपने साथ ले जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वसीयत का इल्म नहीं था। जब रास्ता भूल गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत बड़े बूढ़ों को याद आई। उन्होंने इस वसीयत का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता मालूम ना था, लिहाजा उनकी कब्र का पता चला कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक निकाल कर अपने साथ ले गए और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। इधर फिरौन को जब इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर रात की तारीखी में निकल गए, तो उसने एक बड़े लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। इस लश्कर को लेकर नहायत तेजी से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में रवाना हुए। इधर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते बहरे हमर के साहिल पर पहुंच गए। फिरौन और उसका लश्कर भी तुलुए आफ्ताब के वक्त उनके करीब पहुंच गया। दोनों फरीक एक दूसरे को बखूबी देख रहे थे। बनी इसराइल खौफजदा हो गए। उनके सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, यकीनन हम तो पकड़े गए। जवाब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगज नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ये फरमाने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की अगली जानब आए। समंदर की तरफ देखा, वो मौजे मार रहा था। आपके भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, दीगर ईमान लाने वाले हजरात भी आगे मौजूद थे। फिरौन और उस समंदर की मौजें लम्हा ब लम्हा उनसे करीब हो रही थी। बनी इसराइल मारे खौफ के सकत थे। यूं लगता था उनके दिलों की धड़कनें मारे खौफ के बंद हो जाएंगी। उन्हें अपनी हलाकत का पूरा यकीन हो चला था। किसी तरह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐन उस वक्त अल्लाह ताला अजीमुल कदर ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, अपना आसा समंदर पर मारो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब का हुक्म पाते ही अपना आसा पानी पर मारा। आसा का पानी पर लगना था कि समंदर का पानी दो हिस्सों में बट गया। मौजें आगे बढ़ने से रुक गई। पानी के दरमियान में खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। समंदर का पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अपनी कौम को लेकर समंदर अबूर कर जाओ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फौरन इस रास्ते पर चल पड़े। आपकी कौम भी खुशी के आलम में आपके पीछे चली। उन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम उल शान नजारा देखा था। वो नजारा देखने वालों को हैरान ज़दा कर रहा था और मोमनों के दिलों में ईमान को पुख्ता कर रहा था। ऐसे में फिरौन भी साहिल पर पहुंच गया। फिरौन और उसकी फौज ने समंदर में रास्ता देखा तो वो भी इसी रास्ते पर हो लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आखिरी आदमी समंदर के दूसरे किनारे के नजदीक पहुंचा और फिरौन अपनी फौज के साथ बीच समंदर में, तो अल्लाह ताला ने समंदर को मिल जाने का हुक्म दे दिया। चुनाचा पानी के दोनों पहाड़ आपस में मिल गए। समंदर की खौफनाक मौजों ने फिरौन और उसके साथियों को अपनी लपेट में ले लिया। पानी ने चारों तरफ से उन्हें पूरी तरह ढांप लिया। फिरौन ने अपनी जान बचाने के लिए मौजों पर हाथ पैर मारे। मौजें एक बार उसे ऊपर उठा रही थी और दूसरी बार पानी के नीचे ले जा रही थी।
समंदर का पानी फिरौन और उसकी कौम को बार बार गोते दे रहा था। जब फिरौन को अपनी हलाकत का यकीन हो गया तो उसका गरूर व तकब्बर हवा हो गया। बेबसी के साथ पुकारने लगा, मैं उस रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, मैं उसी की इताअत गुजारों में शामिल होता हूँ। यानी फिरौन ने तौबा की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था और तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। यूं तो तौबा का दरवाजा तो हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला हुआ है, लेकिन उस शख्स के लिए बंद हो जाता है जो ऐसे वक्त में तौबा करता है जब रूह जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है और हलक तक पहुंच जाती है। उस वक्त अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करता। फिरौन की तौबा भी इसलिए कबूल नहीं हुई कि मौत का यकीन हो जाने के बाद उसने ईमान लाने का इजहार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के करीब तौबा का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा और ये उस वक्त होगा जब सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा। उसके बाद किसी का ईमान लाना या किसी गुनाहगार का तौबा करना उसे फायदा नहीं देगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब फिरौन को समंदर में गर्क कर दिया तो बनी इसराइल के बाज लोगों को उसकी मौत का यकीन न आया। बाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मर नहीं सकता। तब समंदर ने अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी लाश पानी से बाहर उछाल दी ताकि उन्हें फिरौन की हलाकत का यकीन हो जाए और वो अल्लाह की कुदरत को देख लें। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज हम तेरा जिस्म बचाकर समंदर से बाहर निकाल फेंकेंगे ताकि तू अपने पिछले आने वालों के लिए निशाने इबरत हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इस तरह फिरौन लोगों के लिए निशाने इबरत बना। आज भी फिरौन की लाश महफूज है और मिस्र के अजायब घरों में मौजूद है। लोग मिस्र के अजायब घरों में जाकर इस लाश को देखते हैं और इबरत हासिल करके तौबा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन की लाश को महफूज किस तरह किया गया, वो गली सड़ी क्यों नहीं? तो तारीख का मुताला करने से मालूम होता है उस जमाने में लोग हनूत का अमल जानते थे। उन्होंने कुछ मसाले इजाद किए थे जो किसी मुर्दा जिस्म पर लगा दिए जाते थे तो लाश महफूज हो जाती थी। इस तरह फिरौन की लाश महफूज कर ली गई। अहराम मिस्र में कुछ और निशानियां भी मकबरों में मौजूद हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए फिरौन की लाश को निशानी बना दिया ताकि लोग इबरत पकड़ें और नसीहत हासिल करें। जब कोई शख्स निशानियां देखने के बावजूद सरकश मुतकब्बर बना रहे, अल्लाह ताला की मोहलत से नाजायज फायदा उठाए, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी सजा से दो चार करता है कि वो रहती दुनिया तक निशाने इबरत बन जाता है। फिरौन के घर होने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल बहर कलज़म पार कर गए। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को साथ लेकर आगे बढ़े। ऐसे में उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने चंद बुतों की पूजा कर रहे थे। उन्हें बुतों की पूजा करते देखकर बनी इसराइल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, इन लोगों के पास बुत हैं, ऐसा ही एक बुत हमारे लिए भी बना दे। ये सुनकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जाहिल कौम हो, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि ये लोग जिस दीन पर हैं वो तबाह बर्बाद होने वाला है और जो ये काम कर रहे हैं वो फजूल और बातिल है। खैर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने से वो समझ गए और अपने रवैये को तब्दील कर लिया। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें पानी का मसला पेश आया। उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की, ऐ मूसा, हमारे लिए पानी का इंतजाम करो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अपना आसा पत्थर पर मारो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए, इसलिए कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे। हर कबीले के लिए एक एक चश्मा हो गया जिससे वो पानी हासिल करते। चुनाचे सबको पानी की नेमत हासिल हो गई। फिर जब उन्हें खाने की जरूरत महसूस हुई तो वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त इस तरह किया कि उनके लिए आसमान से मनोसलवा नाजल किया। मन शबनम की तरह दरख्तों पर गिरता था, उसका जायका मीठा और रंग सफेद था। बनी इसराइल आसानी से उसे दरख्तों से उतार लेते थे और सलवा बटेर की तरह का एक जानवर था जो दरख्तों पर आकर बैठ जाता था। ये लोग आसानी से उसे पकड़ लेते और ज़िबा कर कर खा लेते। फिर जब मैदान तिया में बनी इसराइल धूप और गर्मी की शिद्दत से परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर बादलों का साया कर दिया। अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें अता करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से फायदा उठाओ और जमीन में फितना फसाद ना फैलाओ। अल्लाह ताला की ये नेमतें उन्हें बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के मिल रही थी। लेकिन एक दिन आपकी कौम ने आपसे एक और मुतालबा कर दिया और कहने लगे, हम एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए वो चीजें निकाल दे जो जमीन उगाती है, यानी ककड़ी, गंदम और प्याज वगैरह। उनकी ये बात सुनकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम
बेहतर चीज को छोड़कर कम तर लेना चाहते हो। अगर तुम यही चीजें चाहते हो तो शहर में चले जाओ, जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि वो बहुत नाफरमान कौम थी। जो उनसे कहा जाता था वो उसके उल्ट करती थी। अब अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात का शर्फ बख्शा। शरीयत के अहकाम देने के लिए 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर की तरफ रवाना होने से पहले अपने भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया है, इसलिए तुम मेरी कौम में मेरे बाद जानशीन हो, लिहाजा उनकी इस्लाह करना और फसाद करने वालों के रास्ते की पैरवी ना करना। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को ये हिदायत देकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चले गए। वहाँ पर परवरदिगार ने आपसे कलाम किया तो आपने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी झलक दिखा कि मैं तुझे देख सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मुझे हरगज नहीं देख सकेगा, लेकिन तू इस पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तू मुझे जरूर देख सकेगा। अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपने नूर की चमक डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और इस हकीकत में सबसे पहले ईमान लाता हूँ। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, बेशक मैंने तुझे अपनी रसालत और किलाम के साथ तमाम लोगों में चुन लिया, चुनाचा जो मैंने तुझे दिया है तू ले ले और शुक्र गुजारों में शामिल हो जा। हमने तुरात की तख्तियों में जिंदगी के हर मामले के बारे में नसीहत और हर पहलू के मुतल्लिक तफसील लिख कर दी है, चुनाचा इन हदायत को मजबूती से पकड़ ले और अपनी कौम को हुक्म दे इसकी अच्छी बातों की पैरवी करे। जल्द ही मैं तुम्हें नाफरमानों का घर दिखाऊंगा और जल्द ही अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। अगर वो तमाम निशानियां देख लें तो भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे और अगर वो हदायत की राह देख ले तो उसे इख्तियार करेंगे और अगर वो गुमराही का रास्ता देख ले तो उसे इख्तियार कर लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे गाफिल रहे। वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया उनके अमाल बराबर होंगे, उन्हें वही बदला दिया जाएगा जो कुछ वो दुनिया में करते रहे थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं तूर पर 40 दिन की मुद्दत पूरी की। अल्लाह ताला से कलाम करने का शरफ आपको 40 दिन पूरे होने पर मिला। 1 माह तक आप रोजे की हालत में रहे। 1 माह गुजरने पर आपने एक दरख्त की छाल खाई कि मुंह की बदबू दूर हो जाए। तब अल्लाह ताला ने मजीद 10 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया। इस तरह कुल मुद्दत 40 दिन हो गई। दूसरी तरफ उनके पीछे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में कौम ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, उसका नाम सामरी था। उसने बनी इसराइल से उनके जेवर ले लिए। जेवरात लेने के लिए बहाना उसने ये बनाया कि उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, तुमने ये जेवरात फिरौन के लोगों से लिए थे, अब वो सब तो गर्क हो चुके हैं, तो जेवरात तुम्हारे पास रह गए हैं। ये जेवरात तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, लिहाजा जेवरात मेरे पास जमा करवा दो। उन लोगों ने इनकी बात मान ली और अपने जेवरात इनके पास जमा करवाए। सामरी ने जेवरात इकट्ठे किए, फिर उन जेवरात को पिलाकर उनसे एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा गाय के जवान बच्चे को कहती हैं। इस बछड़े में उसने एक मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। ये मिट्टी कैसी थी और इसने कहां से ली थी? इस सवाल के जवाब में मुअर्रिखीन लिखती हैं कि जिस वक्त फिरौन अपने लश्कर के साथ समंदर के किनारे पहुंचा था तो अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की थी। वो वही सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और वो घोड़े पर सवार थे। ये मिट्टी उस घोड़े के पैरों के नीचे से उठाई गई थी। यूं ही उस बछड़े में वो मिट्टी डाली गई। बछड़ा आवाज देने लगा जैसे कोई सचमुच का बछड़ा हो। अब सवाल ये पैदा होता है, उसमें आवाज किस तरह पैदा हो गई? कुरान और हदीस में ये वजाहत तो नहीं मिलती कि वो आवाज किस तरह देने लगा जबकि वो बेजान था। यही कहा जा सकता है कि सामरी शैतान का पैरोकार था। शैतान ने इस काम पर उसकी मदद की और बछड़े के अंदर से जो आवाज आई वो दरअसल शैतान ने निकाली थी ताकि वो लोग इस बछड़े के दीवाने हो जाएं, एक अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी पूजा करने लगे। शैतान की हमेशा यही कोशिश रही है कि इंसानों को शिरक में मुब्तला कर दे, इसलिए कि शिरक से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। बछड़े की आवाज सुनकर बनी इसराइल उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और खुशी से नाचने लगे। सामरी ने बनी इसराइल को बछड़े पर खुशी से इस तरह लौटते हुए देखकर कहने लगा, यही तुम्हारा महबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गए हैं। ये कहने से उसका मतलब ये था कि मूसा को याद नहीं रहा कि महबूद तो हमारे पास है और हम उसे कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। अब उन्होंने इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी, इसको महबूद मानने लगे। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने इनकी बात ना सुनी और शिरक के गड्ढे में गिरते चले गए। अल्लाह ताला ने उस मौके पर फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे कलाम नहीं करता और ना उन्हें कोई रास्ता बताता
है, फिर भी उन्होंने उसे महबूद बना लिया और वो जालिम थे। मतलब ये कि हवानी मुजस्समा ना तो बातचीत कर सकता है, ना किसी नफा नुकसान का इख्तियार रखता है और ना किसी मामले में उनकी रहनुमाई कर सकता है। उसकी पूजा करना अपनी जान पर जुल्म करने के बराबर था, जबकि उन्हें मालूम भी था कि ये काम जहालत और गुमराही का है। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम इस अजीम फितने के जवाब में कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम इस बछड़े के सामने आजमाए गए हो। तुम्हारा रब रहमान है, लिहाजा तुम मेरी पैरवी करो और मेरे हुक्म की इताअत करो। जवाब में कौम ने कहा, हम तो हमेशा इसी की पूजा करते रहेंगे हत्ता कि मूसा हमारी तरफ लौट आए। इधर अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को इस फितने की खबर दे दी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुस्से के आलम में अफसोस करते हुए अपनी कौम के पास आए। उन्हें मुखातिब कर कर कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरे बाद तुमने ये बहुत बुरी हरकत की है। क्या तुमने अपने परवरदिगार के हुक्म से पहले ही जल्दबाजी कर ली कि 40 रातें भी पूरी ना होने दी और बछड़े को महबूद बना लिया? तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा किया था, अगर तुम दीन पर कायम रहे और हारून अलैहिस्सलाम की पैरवी करते रहे तो तुम्हें बेहतरीन बदला मिलेगा। अब क्या इतना वक्त गुजर गया है कि तुम मुझे भूल गए हो, या तुम्हारा इरादा ही यही था कि इसकी खिलाफ वर्जी की वजह से कहरे इलाही तुम पर नाजल हो? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में तौरात की तख्तियां थी। उन्होंने उसे एक तरफ रखा और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे और उनसे कहा, ऐ हारून, उन्हें गुमराह होते देखकर तू मेरे पास ना आया? क्या तू भी मेरे हुक्म का नाफरमान बन बैठा? सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़े। मैं आपके पीछे इसलिए नहीं आया कि ऐसा ना हो कि आप कहें तूने बनी इसराइल के दरमियान फिरका डाल दिया और मेरी बात याद ना रखी। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा। तू सब मेहरबानों से ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने भी सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, और हारून ने इससे पहले उनसे कह दिया था, ऐ मेरी कौम, इस बछड़े से सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो रहमान है, लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरा हुक्म मानो। मतलब ये कि ये सब तो अल्लाह की तकदीर से पेश आया है। उन लोगों की आजमाइश के लिए उस बछड़े में आवाज पैदा कर दी गई, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो रहमान है, ना कि ये बछड़ा, लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक हम इसी की पूजा करेंगे। वो किस कदर बेखौफ लोग थे, लेकिन उससे भी बढ़कर आज के जमाने में बेखौफ लोग पाए जाते हैं जो मज़ारों और कब्रों पर सजदा करते नजर आते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आमीन। उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए। उनसे फरमाया, ऐ सामरी, तेरा क्या मामला है? जवाब में उसने कहा, मैंने वो चीज देखी थी जो इन लोगों ने नहीं देखी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, क्या मतलब है? तब सामरी बोला, मुझे जबरील नजर आ गए थे, वो घोड़े पर सवार थे, चुनाचा मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी जबरील के घोड़े के नक्शे कदम से भर ली, इसलिए कि मैंने देखा था जहाँ जहाँ उसके घोड़े के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ जिंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं, घास उग जाती है। बस मैंने वहाँ से मिट्टी ले ली और जब मैंने वो सोने के बछड़े में डाली तो आवाज निकलने लगी। उसकी ये बात सुनकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूर हो जा, तेरी सजा ये है कि जब तक तू दुनिया में जिंदा है यूं कहता रहेगा कि देखो मुझे हाथ ना लगाओ। मूसा ने सामरी को ये बद्दुआ दी, उसे कोई ना छुए, इसलिए कि उसने उस चीज को छुआ था जो उसके लिए जायज ना थी। दुनिया में तो उसे अपने जुर्म की सजा मिली, आखिरत में भी उसे अजाब होगा। इसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से फरमाया, अब अपने तू महबूद की तरफ देख जिसकी पूजा में तू लगा रहा, हम उसे जला देंगे फिर उड़ाकर समंदर में बिखेर देंगे। चुनाचा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को आग लगा दी और उसकी राख को समंदर में बिखेर दिया कि उस बछड़े के नामो निशान बाकी ना रहे और लोगों पर यह हकीकत खुलकर वाज़िया हो जाए कि महबूद सिर्फ रब्बुल आलमीन ही है। इसलिए आपने उनसे फरमाया, तुम्हारा महबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई महबूद नहीं। उसने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। जिन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े को महबूद माना था, उनके मतलब अल्लाह ताला का फरमान है, वो लोग जिन्होंने बछड़े को महबूद बना लिया, जल्द ही उन पर उनके रब का अजाब आ पहुँचेगा और उन्हें दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। हम बहुतान बांधने वालों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। चुनाचा इसी तरह हुआ, अल्लाह का अजाब उन पर नाजल हो गया, उनके किए की सजा उन्हें मिली। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वाइज़ो नसीहत की और उन्हें बारगाह इलाही में तौबा करने का हुक्म दिया। उन्हें मुखातिब करके फरमाया, तुमने बछड़े को महबूद बनाकर अपने आप पर जुल्म किया है, लिहाजा तुम अपने पैदा करने वाले के हजूर तौबा करो, इसी तरह कि तुम अपने आप को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर है। उन्होंने तलवारें हाथ में ले ली। अल्लाह ने उन पर धुंध मुसल्लत कर दी ताकि करीबी रिश्तेदार उन्हें नजर ना आ सके।
सकें। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। कहा जाता है उस रोज 70,000 अफराद कत्ल हुए। इनका जुर्म भी इतना ही बड़ा था। बड़े जुर्म की सजा भी बड़ी ही मिलती है। बछड़े की पूजा करने वाले को अल्लाह ताला ने कैसी सजा दी। उन्होंने एक दूसरे को अंधाधुंध कत्ल किया। एक ही दिन में तकरीबन 70,000 अफराद मारे गए। उसके बाद धुंध खत्म हुई और उन लोगों को कत्ल रोकने का हुक्म हुआ जो कत्ल हो गए। जो कत्ल होने से रह गए सबकी तौबा कबूल होने का ऐलान किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। अब तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला जो तुरात मुझे अता की है तुम इसकी हदायत पर अमल करो। वो लोग भी बहुत अजीब थे। कहने लगे, ऐ मूसा, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि तुरात अल्लाह की किताब है। गोया एक नबी की बात के सच्चे होने में इन्हें शक था, जबकि इस सच्चे नबी के इससे कबल मौजज़ात देख चुके थे। इससे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा, हम ये बात किस तरह मान ले कि ये कलाम वाकई ही अल्लाह का है। हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला को सामने ना देख लें। इन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो इरशाद हुआ, आप इस कौम के 70 लोगों को कूहे तूर पर ले आए, हम खुद इन्हें अपना कलाम सुना देंगे, इससे यकीन हो जाएगा। फिर इसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया 70 आदमियों को लेकर कूहे तूर पर जाएं और अल्लाह ताला से बछड़े की पूजा के सिलसिले में मुआफी मांगे। चुनाचा आप उनको साथ लिए कूहे तूर पर पहुंच गए। वादे के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको अपना कलाम सुना दिया। जब उन्होंने कलाम अपने कानों से सुन लिया तो अब वो कहने लगे, हमें क्या मालूम ये आवाज अल्लाह ताला की है या किसी और की। हम तो इस वक्त यकीन करेंगे जब साफ तौर पर अल्लाह ताला को देख लेंगे। इनका ये मुतालबा चूंकि हट दर्मी पर मुश्तमिल था, इसलिए उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ। वहाँ उन लोगों को जंजले ने पकड़ा, इससे ये सब के सब बेहोश होकर गिर गए और बज़ाहिर मर गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमी हमारे मुकर्रा किए हुए वक्त के लिए मुंतखिब किए। जब उन पर जंजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया और कहने लगा, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता है तो इससे पहले ही उनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको तू चाहता है हिदायत पर कायम रखे। तू ही मेरा सरपरस्त है, लिहाजा हम पर मगफरत फरमा और रहमत फरमा। तू ही सबसे बेहतरीन मुआफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाकिया करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं, जो ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और जो रसूलों का इत्बा करते हैं जिसे वो अपने पास तुरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं। उनको नेक बातों का हुक्म फरमाता है और बुरी बातों से मना करता है और पकीज़ा चीजों को हलाल और गंदी चीजों को उन पर हराम करता है। लिहाजा जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं और उसकी हमायत करते हैं और उसकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्बा करते हैं जो उसके साथ भेजा गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये सूरह अराफ की आयत है। इसकी वजाहत में मुफस्सरीन ने लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 अफजल तरीन आदमी चुने और उनसे फरमाया, अपनी पूरी कौम के लिए मुआफी की दुआ करो, रोजा रखो, गुस्ल करो और अपने कपड़े पाक करो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्रा वक्त पर उन्हें कुएं तूर पर ले गए। उन 70 अफराद ने अल्लाह का कलाम सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ही होगा। फिर जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के करीब पहुँचे तो बादल ने पूरे पहाड़ को छुपा लिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बादल के अंदर दाखिल हो गए। फिर दूसरों से फरमाया, करीब आ जाओ। चुनांचे ये लोग भी बादल में दाखिल हो गए और अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम होता था तो आपका चेहरा मुबारक इस कदर रोशन हो जाता कि कोई इंसान आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, इसलिए कि आपके और उनके दरमियान एक पर्दा आ गया। अब उन्होंने सुना अल्लाह ताला सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम था और अहकाम नाज़िल फरमा रहा था। जब अल्लाह ताला अहकाम दे चुका तो आपसे बादल हट गया। तब उन लोगों ने कहा, जब तक हम अपने रब को सामने ना देख ले आप पर हरगज ईमान नहीं लाएंगे। इस पर एक कड़ाकेदार आवाज आई, उनके जिस्मों से रूह निकल गई, वो मर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और इनकिसारी के लहजे में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता है इससे पहले ही मुझे और उनको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? आपकी दुआ पर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमा दी ताकि वो अल्लाह के शुक्र गुजारों में से हो जाएं और फिर इस किस्म की बेइजाजत ना करे। ये 70 आदमी दोबारा जिंदा होने के बाद जब अपनी कौम में वापस पहुँचे तो उन लोगों ने बाकी कौम को भी ये सारा वाकया सुना कर कहा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो हक है, बिलाशुबा अल्लाह के भेजे
हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम कुछ अहकाम को मानेंगे, यानी जो अहकाम आसान होंगे उनको मानेंगे, और जिन अहकाम पर अमल पैरा होने में मुशक्कत है उससे बाज रहेंगे। इस पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तमाम अहकाम पर अमल करो। उन्होंने फिर इनकार किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बात दोहराई। इस तरह जब कई बार हुआ तब अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, पहाड़ को उठाकर उन लोगों के सरों पर ले आओ। जब पहाड़ उनके सरों के ऐन ऊपर खड़ा हुआ तब उनसे कहा गया, अगर कबूल नहीं करोगे तो ये पहाड़ तुम पर आ गिरेगा। तब उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सजदा करने का हुक्म हुआ। फिर उन्होंने सजदा किया, लेकिन ऐसा करते वक्त भी वो पहाड़ की तरफ देख रहे थे। लेकिन बनी इसराइल इसके बाद भी अपने वादे से फिर गई। इतना कुछ होने के बाद भी वो फिर गए। इस पर अल्लाह ताला चाहता तो उसको सजा देकर तबाह व बर्बाद कर सकता था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अपना फजल फरमाया और हुक्म दिया, कौमे अमलका से जहाद करें और अपना आबाई वतन वापस लें। कौमे अमलका उनके आबाई वतन पर काबज हो गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दी है, और पीठ दिखाकर वापस मत जाओ वरना सख्त नुकसान उठाओगे। आगे बढ़ो, कौमे अमलका से जंग करके अपना आबाई मुल्क वापस ले लो। अल्लाह ताला ने मुझसे कामयाबी का वादा फरमाया है। इस पर कौम ने जवाब दिया, ऐ मूसा, इस कौम में तो बहुत जोरावर आदमी हैं, जब तक वो वहाँ मौजूद हैं हम वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा, ऐ मूसा, जब तक वो लोग वहाँ मौजूद हैं हम इस सरजमीन में कहीं दाखिल नहीं होंगे। ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। ये जवाब हद दर्जे बेअदबी का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी ये हम सोच भी नहीं सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दर्द भरे अंदाज में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं अपने और अपने भाई के अलावा किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान फैसला कर दे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया, अब वो मुकद्दस सरजमीन और उन पर 40 साल की रोक कर दी गई है। ये जमीन के एक खास हिस्से में सर मारते फिरेंगे। सो ऐ मूसा, आप इस नाफरमान कौम के हाल पर रंज ना करें। इस तरह इस कौम को 40 साल के लिए वादी तिया में कैद कर दिया गया। वो इस वादी से निकलने के लिए पूरी रात चलते, लेकिन दिन निकलते वक्त वो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चलते थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, अपने परवरदिगार की तरफ से मौत का पैगाम कबूल फरमाएं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा रसीद कर दिया। इस तमाचे से फरिश्ते की आंख फूट गई। उसने दरबार इलाही में हाजिर होकर शिकायत की, ऐ बारी ताला, आपका बंदा मौत नहीं चाहता। उसने मुझे तमाचा रसीद किया है और मेरी आंख फोड़ दी है। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते की आंख ठीक हो गई। फिर उसे हुक्म मिला कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ, उनसे कहो कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप किसी बैल की कमर पर हाथ रखें, जिस कदर बाल आपकी मुट्ठी के नीचे आएंगे हम हर बाल के बदले में आपकी उम्र में 1 साल इजाफा कर देंगे। फरिश्ते ने दोबारा आकर अल्लाह ताला का ये पैगाम आपको सुनाया। आपने अर्ज किया, ऐ बारी ताला, इसके बाद क्या होगा? जवाब मिला, आखिरकार फिर मौत है। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर तवील से तवील जिंदगी के बाद भी मौत है तो फिर वो मौत आज ही क्यों नहीं? फिर आपने दुआ की कि इसके आखिरी वक्त में अल्लाह ताला आपको मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन के करीब कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लामा बिन कसीर में लिखा है कि वफात के वक्त आपकी उम्र 120 साल की थी। आप मुआब मुकाम की एक वादी में दफन किए गए। आप पहले पैगंबर हैं जिसकी कोशिश से बनी इसराइल ने गुलामी से निजात हासिल की, उन्हें आजादाना जिंदगी गुजारने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए बहुत ज्यादा मौजज़ात उन्हें अता फरमाए। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिक्र भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ही है। अल्लाह ताला ने आपकी बहुत तारीफ फरमाई। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाता है, इस कुरान में मूसा का जिक्र कीजिए जो चुना हुआ नबी और रसूल था। हमने उसे तूर की दाईं जानब से पकड़ा और सरगोशी करते हुए उसे करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी उसके भाई को भी नबी बनाकर उसे अता फरमाया। इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम अपने कलाम के जरिए से लोगों से मुमताज किया, लिहाजा जो मैंने तुमको अता किया उसे पकड़ो और मेरा शुक्र बजा लाओ। एक और जगह कुरान
कुरान मजीद में है और हमने अपनी खास मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे अता फरमाया। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज तकसीम फरमाई। एक शख्स ने कहा, इस तकसीम से अल्लाह की रजा मकसूद नहीं थी। मतलब ये था कि नाउज़ बिल्लाह आप अलैहिस्सलाम ने इंसाफ से काम नहीं लिया। आपने ये बात जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर गुस्सा आ गया, चेहरे मुबारक पर नाराजगी के आसार जाहिर हो गए। फिर आपने गुस्से को जब्त करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला मूसा पर रहम फरमाए, उन्हें इससे ज्यादा अजियत दी गई, उन्होंने सब्र किया था। मराज की रात छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेक नबी और नेक भाई को खुश आमदीद।